رہے ہم یا رب ہو کرم، کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ پلانٹیشن یعنی شجرکاری کے بارے میں جانتے ہیں؟ شجرکاری بیسیکلی درخت اور پودے لگانے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو چلیں اب لوکیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہاں میں بچوں سے ملوں گا، بڑوں سے ملوں گا اور ان سے کچھ باتیں بھی کروں گا، اور ہاں میں آپ کو ایک پبلک سروس میسیج بھی دکھاؤں گا، اور ہاں آپ کو عطر لگانے کی سنت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیں آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ پیارے بچوں، ہم لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں کچھ پیارے پیارے بچے ہیں۔ آئے اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں سے پوچھتے ہیں۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن ہے اور میں کڈس مدنی چینل سے آیا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد اکمل رضا تاری ہے۔ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے میں ہیں؟ 8 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ تو کیا آپ کی اجازت ہے میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ بالکل اجازت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان کی اجازت مل گئی ہے، آئے اب ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ میرا پہلا کوشچن، درختوں کے پتے تو جھڑتے ہیں، مگر وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے تو ہوتے ہیں مگر وہ جھڑتے نہیں ہیں؟ کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کچھ اور بچے ملے ہیں، ان سے کچھ تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن ہے اور میں مدنی چینل کڈس سے آیا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالحسیب۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عثمان۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عثمان۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، ان کا تعارف بھی ہو گیا، آئے ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں، مگر وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے تو ہوتے ہیں مگر وہ جھڑتے نہیں ہیں؟ کھجور کا درخت۔ ناریل کا درخت۔ ناریل کا درخت۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، ان دو بچوں نے بولا ناریل کا درخت اور عبدالحسیب بھائی نے بولا کھجور کا درخت۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ناریل اور کھجور ان دونوں درختوں کے پتے نہیں جھڑتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تینوں بچوں نے جواب درست دے دیا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کچھ بچے کھڑے ہیں، آئیں ان سے تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن ہے اور میں کڈس مدنی چینل سے آیا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد مبشر رضا ہے۔ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن ہے اور میں کڈس مدنی چینل سے آیا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد حسان رضا ہے۔ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7۔ تو چلیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، درختوں کے پتے تو جھڑتے ہیں مگر وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے تو ہیں مگر وہ جھڑتے نہیں ہیں؟ کھجور کا درخت۔ مبشر بھائی نے بالکل درست جواب دیا۔ آئیں اب بڑھتے ہیں حسن بھائی کی جانب۔ میں نے تو پڑھا ہے کہ کیلے کے درخت کے پتے بھی نہیں جھڑتے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسے کہتے ہیں جنرل نالج کا ہونا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیلے کے درخت کے بھی پتے نہیں جھڑتے۔ حسن بھائی، کیا آپ سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی جی۔ تو یہ بتائیں، پر ہو تو پرندے اڑتے ہیں مگر وہ کون سا جانور ہے جس کے پر تو ہیں مگر وہ عام پرندوں کی طرح نہیں اڑتا؟ مرغا۔ مرغی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اکمل بھائی نے کتنا اچھا جواب دیا۔ سمیر بھائی، کہ میں آپ سے دوسرا کوشچن کروں؟ جی۔ پر ہو تو پرندے اڑتے ہیں مگر وہ کون سا جانور ہے جس کے پر تو ہیں مگر وہ عام پرندوں کی طرح نہیں اڑتا؟ مرغا۔ مرغی۔ مرغی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے ایان بھائی نے بھی درست جواب دیا۔ مرغی۔ مرغا۔ مرغا۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان دو بچوں نے جواب دیا مرغا اور عبدالحسیب بھائی نے جواب دیا مرغی۔ تینوں کا جواب درست ہے۔ مرغا اور مرغی عام پرندوں کی طرح نہیں اڑتے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مرغی کی آواز کو بانگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اذان کہتے ہیں۔ صبح اسمبلی میں مشہور دعا لب پہ آتی ہے پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے جس کا دوسری لائن یہ ہے کہ علم کی شمع سے مجھ کو محبت ہو یا رب۔ اس سے پہلے پڑھی جانے والی لائن کون سی ہے؟ ہو میری پروانے کی صورت یا رب۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نیکی کی بات۔
बहुत आसान है, बहुत मशहूर शेर है, थोड़ा सोचिए याद आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन देखिए इन्होंने फौरन से जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है आपको याद नहीं है, चले आप बता दो उस्मान भाई। लब्बे आती है दुआ मन के तमन्ना। नहीं आप बताएंगे? चलते नेकी चलें अब्दुल रसीफ भाई आप एक और मौका दूं आपको, बताएंगे? बताएं। जिंदगी मेरे परवाने की सूरत हो या रब। अब्दुल हसीब भाई ने जवाब देने की कोशिश करी लेकिन कुछ गलती है, मैं उसको सही कर देता हूँ। ये शेर है, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इसकी पहली लाइन ये है कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। आपको आता है? चले आप हसन भाई से पूछते हैं, मुबशिर भाई को याद नहीं है। हसन भाई आप बताएं। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। सुभान अल्लाह। देखिए हसन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक इनके जनरल नॉलेज में और बरकत अता फरमाए। आए मदनी चैनल के नाजरीन इनसे एक और सवाल करते हैं। अकमल भाई क्या एक और सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। उमर किस अजीम इस्लामी हस्ती का नाम है? हमारे नबी के सहाबी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वो कौन थे? सहाबी रसूल। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो आप तीनों में से कोई इनका पूरा नाम बताएगा? चलो उस्मान भाई आपसे पूछते हैं, बताएं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उस्मान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया, बल्कि तीनों ने दुरुस्त जवाब दिया। उमर किस अजीम इस्लामी हस्ती का नाम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। आपको पता है इनका पूरा नाम क्या है? जी। तो बताएं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर किस अजीम इस्लामी हस्ती का नाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का नाम। तो आपको इनका पूरा नाम पता है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी मदनी चैनल के नाजरीन इनका नाम है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे और दूसरे नंबर के खलीफा थे। चले अब बहुत आसान सवाल है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत बताएं। इत्तर लगाना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मुसवाक करना। सुभान अल्लाह। अयान भाई आप भी कोई सुन्नत बता दें। इत्तर लगाना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए उमर भाई ने भी जवाब दिया इसका, अयान भाई ने भी जवाब दिया। इत्तर शरीफ लगाना। दाढ़ी रखना। मिसवाक करना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तीनों ने अलग अलग जवाब दिया लेकिन तीनों का दुरुस्त है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी रखना भी है, मिसवाक करना भी है, इत्र लगाना भी है। इत्तर लगाना। हसन भाई आप भी बता दें। मुस्कुराना। सुभान अल्लाह। इत्र लगाना भी मेरे प्यारे आका की सुन्नत है, मुस्कुराना भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक करना। जी मदनी चैनल के नाजरीन मिसवाक करना ये भी मेरे प्यारे आका की सुन्नत है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन ये था हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम था बच्चों से पूछते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन और मैं किड्स मदनी चैनल से आया हूँ। आपका क्या नाम है? सलाउद्दीन नाम है मेरा। सलाउद्दीन नाम है। तो सलाउद्दीन भाई मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। चले मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। गारे सौर में रहने के दौरान किन दो जानदारों ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी ताकि काफिरों को पता न चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं? मेघालय एक तो मकड़ी थी जी जी और एक कबूतर था जी। मेरा। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन देखिए सलाउद्दीन भाई ने कितना प्यारा जवाब दिया। कबूतर जिसने अंडे दिए थे और मकड़ी जिसने जाल बनाया था। एक मकड़ी थी जी जी और दूसरे का जी। दूसरे का नहीं याद। एक मकड़ी थी और एक कबूतर था। मकड़ी थी भाई एक, दूसरा का कोई पता नहीं। और मकली और कबूतर। जी मदनी चैनल की नाजरीन इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, मकड़ी और कबूतर। मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, मकड़ी ने क्या वहाँ पे खिदमत करी थी? मकड़ी ने अपना जाला बना दिया था। कबूतर ने क्या खिदमत करी थी? कबूतर ने अंडे दे दिए थे। सुभान अल्लाह। एक तो मेरे ख्याल में वो थे, क्या कहते हैं, मकड़ी जी और कबूतर। कबूतर और मकड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं किड्स मदनी चैनल से आया हूँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुल्फ़िकार अत्तारी। जी मोहम्मद जुल्फ़िकार अत्तारी भाई, क्या आपकी इजाज़त है मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कीजिए।
غار ثور میں رہنے کے دوران کن دو جانداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی تھی تاکہ کافروں کو پتہ نہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے؟ غار ثور کے اندر مکڑی نے جالا بنا دیا تھا اور کبوتر نے انڈے دے دیے تھے. کافر آ کر جب انہوں نے دیکھا کفار نے تو انہوں نے یہ گیس کیا, یہ سمجھا کہ اس میں کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا, تو یہ دیکھ کر وہ پلٹ گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ کو وضو کرنا چاہیے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ عبد الرحیم بھائی نے جواب دیا وضو کر لینا چاہیے. ان کا جواب بالکل درست ہے. اب بلال بھائی آپ بتائیں, غصہ آئے تو اور کیا کرنا چاہیے؟ پانی پینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے, اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ بھی پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, اور استغفار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. جب ہمیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. جب انسان کو غصہ آئے تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اسی طرح کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اور اگر بے وضو ہے تو وضو کر لے, اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائے تو بھی اس کا غصہ جاتا رہے گا. جب انسان کو غصہ آئے تو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اسے وضو کرنا چاہیے. اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, تو اپنی جگہ چینج کر لے ایک طرح سے. بسم اللہ پڑھنا چاہیے اس کو. اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے, وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو کچھ پڑھنے لگے, وہ اپنا اسلامی کوئی بھی آیت وغیرہ پڑھ لے, تو اس سے غصہ اس کا ٹھنڈا ہو سکتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. جی کس مدنی چینل کے ناظرین, میں بھی یہاں پہ کچھ کہنا چاہوں گا. جب انسان کو غصہ آئے تو اسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے. اگر وہ شخص کھڑا ہے تو بیٹھ جانا چاہیے, بیٹھا ہے تو لیٹ جانا چاہیے. یہ بتائیں, میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ پڑھوں گا, آپ کو اس الفاظ کی صحیح ادائیگی بتانی ہے, تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی جی بالکل تیار ہوں. چلیں پہلا الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ترجمہ. ترجمہ جو ہے وہ صحیح ہے, اور ترجمہ جو ہے وہ غلط ہے. ترجمہ. ترجمہ. جی ترجمہ. 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 جی صحیح جواب بالکل. اب آئیں آپ سے ایک اور لفظ پوچھتا ہوں, سوال. سوال کی صحیح ادائیگی جو ہے سوال ہے. سوال. سوال کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ سوال. سوال کی صحیح ادائیگی میرا خیال ہے سوال. 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 جی سوال بالکل درست جواب. جمعہ, اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ جمعہ. جمعہ کی صحیح ادائیگی جمعہ. جمعہ کی کیا صحیح ادائیگی ہے؟ جمعہ. جمعہ. غلطی کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ غلطی. 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 جی کرش مدنی چینل کے ناظرین, میں نے صلاح الدین بھائی سے پوچھا غلطی کی صحیح ادائیگی کیا ہے, تو انہوں نے بالکل درست جواب دیا, غلطی. 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 جی سبحان اللہ. غلطی صحیح ہے. نہیں, اس کی ادائیگی تھی غلطی. 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 اور ان کا جواب بالکل درست ہے. 4 سمتیں ہیں, مشرق, مغرب, جنوب اور شمال. بتائیں ان چاروں سمتوں میں چلنے والی ہوا سے کون سی ہوا سے بارش ہوتی ہے؟ میرے جنوب سے ہوتی ہے. مشرق کی سمت سے چلنے والی ہوا سے بارش ہوتی ہے. مشرق سے چلنے والی ہواؤں سے بارش ہوتی ہے. میرے خیال میں مشرق کی طرف سے جو چلتی ہے ہوا. جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ مشرق کی ہوا ہے. مشرق کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے اس سے بارش ہوتی ہے. مشرق. جی مدنی چینل کے ناظرین, صادق بھائی نے بالکل درست جواب دیا. پیارے بچوں, آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے درخت اور اس کی اہمیت. پیارے بچوں, پلانٹیشن یعنی شجرکاری. اچھا, شجرکاری کہتے ہیں درخت اور پودے لگانا. یہ تو ہماری زندگی میں اب ختم ہی ہو گیا ہے. پلانٹیشن ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آئیے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم پلانٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ لوگ اس کے اہمیت کا پتہ نہیں ہے, ہم لوگ اس لیے نہیں لگاتے. بلال بھائی آپ بتائیں, ہم درخت کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے, ہم درخت لگا سکتے ہیں. میرے خیال کچھ جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے, کنسٹرکشن وغیرہ کا, یہی مسئلہ ہوں گے اور کیا. لوگوں نے جو ہے اب بلڈنگیں بنانا شروع کر دی ہیں, اس وجہ سے جو ہے لوگ پودوں کو لگانا بھول چکے ہیں. تو پودے جو ہیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. ہم درخت اس لیے نہیں لگاتے, آبادی بڑھ گئی ہے, بلڈنگیں لگانی ہیں. یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کے
ऊपर तो नहीं लग सकते दरख्त। ये इंसानों की कोताही समझ लो, अब क्या बोल सकते हैं हम। हालांकि बहुत ज़रूरी है इंसानियत के लिए, ऑक्सीजन के लिए। आजकल जो है ना, लोगों में शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। उनको चाहिए कि दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हम दरख्त क्यों नहीं लगाते? देखा जाए तो हमें दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त लगाने से फ़ायदा ही है। हमें पौधे लगाने चाहिए, इससे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो पौधे लगाने के फ़वाइद लोगों को पता नहीं है कि पौधे लगाने के फ़वाइद क्या हैं। इसी तरह जो है ला इल्मी भी है, और इसी तरह सुस्ती कायली भी कह लें। हो सकता है नियत करते हों, लेकिन इसके लिए भी टाइम लगता है, वक्त निकालना पड़ता है, और जो है इसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत वगैरह से जी चुराने वाले लोग भी पौधे नहीं लगा सकते। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को ग्रीनरी करने में मतलब पीछे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बहुत से लोगों ने बताया कि हम प्लांटेशन क्यों नहीं करते। आए अब इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि प्लांटेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। दरख्त लगाने के फ़ायदे ये, बीमारी भी नहीं होती है दरख्त लगाने से। सही है, उसमें बहुत फ़ायदे हैं। हवा साफ होती है दरख्त लगाने से। बेहतर दरख्त लगाने के तो बहुत फ़ायदे हैं। इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, आबो हवा में गर्द गुब्बार जो होता है इसको कवर करता है, ये बारिश इससे होती हैं। पौधों से जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है, और फल फ्रूट वगैरह भी जो है वो भी मिलते हैं। आलूदगी भी इससे कम होती है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। बहुत से फ़वाइद हैं, छाएँ, हवा में ठंडी ठंडी। पौधे लगाने चाहिए। गर्मी में कोई मुसलमान बैठ जाता है नीचे, साया होता है, हवा चलती है, बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह की नेमत है, दरख्त है, इनको लगाना चाहिए। इनकी बात से ये भी मतलब निकल सकता है कि दरख्त लगाएं, सवाब कमाएं। इंशाअल्लाह आप नियत भी करें, मैं भी नियत करता हूँ कि हम दरख्त ज़रूर लगाएंगे। दरख्त छाँव मिलती है जी, और हवा मिलती है, बीमारियां कम होती हैं। दरख्त लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि अगर आप धूप में लगाते हैं तो आपको छाँव मैसर होती है, दरख्त से हमें फल मिलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, तो कि ऑक्सीजन इससे आपको मिलती है, और ग्रीनरी होती है, इससे बारिश ज़्यादा होती है, खूबसूरती नज़र आती है, बहुत अच्छी। पौधे लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे ऑक्सीजन खारिज होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इससे ये है कि हमें लकड़ी भी मिलती है। जब ये दरख्त बनता है तो लकड़ी प्रोवाइड करता है, जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, और भी कई फ़वाइद हैं पौधे लगाने के। और जो है मौसम भी अच्छा होता है, और बारिश वगैरह का भी सिलसिला पौधों के ज़रिए हो सकता है। इससे बहुत इंसान को फ़ायदा होता है। इससे फल वाला हो तो फल फ्रूट मिलेंगे, फूल वाला तो खुशबू मिलेगी, और पौधे वाला दरख्त वाला हुआ तो उसको ये कि ताज़गी हवा, ताज़ा हवा, ठंडी छाँव मिलेगी। उससे हमें ताज़ी हवा मिलती है, और आँखों को भला लगता है, हरे भरा अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, शजरकारी के फ़ायदे तो सब ने बताए, और हमें इनकी अवेयरनेस भी है, मगर साथ ही साथ हम शजरकारी भी नहीं करते। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर को प्लांटेशन के बारे में तो दूसरे आम लोगों से ज़्यादा मालूम होता है। सिर्फ अगर स्टूडेंट्स ही पौधे लगाना शुरू कर दें तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पौधे लग सकते हैं, और हमें भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पौधे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लगाए हैं, और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान भी शजरकारी किया करते थे। इसलिए हमें सुन्नत पर अमल करने की नीयत से ये काम करना चाहिए, ताकि हमें सवाब भी मिले। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर चैनल के नाजरीन, आए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। इंसान ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमेशा अल्लाह पाक की बनाई हुई नेमत से ही फ़ायदा हासिल किया है। मीलों दूर चलने का सफ़र हो तो ऊँट, और आराम हो तो दरख्त की छाँव। लेकिन देखते ही देखते दुनिया से दरख्त गायब होते जा रहे हैं। जब ये अल्लाह की मखलूक हमें नुकसान नहीं पहुँचाती तो फिर हम इसे क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जंगलात 4 अरब हेक्टर्स, यूं कह लें कि दुनिया के रकबे के तकरीबन 30% हिस्से पर फैला हुआ है। दुनिया की तकरीबन 25 करोड़ आबादी है जो कि गांव देहातों में रहती है। इनकी ज़िंदगी, रहने और खाने का जरिया दरख्तों से ही पूरा होता है। जैसा कि दुनिया में फार्मिंग और जानवरों के चारे, ज़ेर ज़मीन माइंग और ड्रिलिंग ही जंगलात को तकरीबन आधे से ज़्यादा ख़त्म करने की वजह है। दरख्त लगाने के अमल को शजरकारी और इंग्लिश में प्लांटेशन कहते हैं। शजरकारी के काम में
दिलचस्पी ना होना, जंगलाती आग और जंगलात को काट कर आबादी कायम करना बाकी वजूहात में शामिल है। दरख्तों का एक बड़ी तादाद में किसी जगह पर मौजूद होना जंगलात कहलाता है। दरख्त की लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा कि फर्नीचर, स्कूल डेस्क, अलमारियाँ, मेज़ें, कागज़, माचिस, खेलों का सामान वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी बहुत से कारखाने और घरेलू सामान दरख्तों की लकड़ी से ही बनाया जाता है। दरख्तों की लकड़ियों को जलाकर उस पर खाना भी पकाया जाता है। दरख्त हमारे माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, आवाज़ के शोर को कम करते हैं, पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। जंगलात और दरख्त बारिश के पानी को ज़मीन में जज़्ब करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव कम हो जाता है। ये मिट्टी को स्टेबल करते हैं और वाइल्ड लिविंग बींग्स को जिंदगी बख्शते हैं। दरख्त हमारी जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन हम इसकी अहमियत को सीरियस ही नहीं ले रहे और रोज़ बरोज़ जंगलात और दरख्त हमारी इस प्यारी सी दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। देखा जाए तो हम हर साल तकरीबन 18.7 मिलियन एकड़ के जंगलात को ख़त्म होते देख रहे हैं। गर्म इलाकों पर जंगलों के दरख्तों के ख़त्म होने का और भी ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। क्या आपको पता है कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तकरीबन 6 से 9 दरख्त की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त हर साल ऑन एवरेज 100 kg ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इंसान को ऑन एवरेज तकरीबन 740 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हर साल। यानी जब हम दरख्त काटते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्हें जिंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दरख्तों की कमी से जानवरों और परिंदों की स्पेशीज में भी खतरनाक हद तक कमी आई है। जंगलात हर साल तकरीबन 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, जिससे आबो हवा साफ होती है। इतनी अहमियत के हासिल होने के बावजूद दरख्तों की पाकिस्तान में बहुत कम तादाद है, जो कि दिन ब दिन मज़ीद कम होती जा रही है। दरख्तों और जंगलात की कमी की वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसी वजह से इंसानों और जानवरों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो दरख्तों की अहमियत को समझे और अपनी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा दरख्त लगा सकता है वो ज़रूर लगाए, क्योंकि ये एक सदका जारिया भी है। चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान की दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से ये भी है कि वो अच्छी बात बताएं और बुरी बात से मना करें। तो कशबंदी चैनल का नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सुन्नत के बारे में बताऊंगा, वो है इत्र लगाना। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्र लगाते थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खुशबूदार रहते थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का बहुत इस्तेमाल फरमाया करते थे, ताकि आपकी उम्मती इस पर अमल करने की नियत से खुशबू लगाएं। वरना मदनी चैनल के नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कुदरती तौर पर महकता रहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक तमाम खुशबू में से बेहतरीन खुशबू है। आए मदनी चैनल के नाज़रीन इस सुन्नत पर अमल करने की नियत से इत्र लगाते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, इत्र लगाने की सुन्नत पर अमल करने की सआदत मिली। आए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, अब हम करते हैं चलते चलते आखिरी बात। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ारिस के रहने वाले थे। फ़ारिस के रहने वालों की उम्रें लंबी हुआ करती थी। इसकी वजह ये बताई जाती है कि फ़ारिस के बादशाह नहरों की खुदाई करते और शजरकारी में खूब हिस्सा लिया करते थे, इसलिए उनकी उम्रें लंबी हुआ करती थी। अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी पाने के लिए हमें चाहिए कि हम पौधे और दरख्त लगाएं और अपने मुल्क पाकिस्तान को हरा भरा रखें। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करते रहे हम या रब हो करम, करते रहे हम या रब हो करम। चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।